So good morning everyone. Today we are going to discuss chapter number 3, the desert. As the name of the chapter itself suggests, we are going to read about the deserts and maybe different desert animals. So let us start reading the chapter. A desert is generally without water and vegetation. जो हमारा conception है desert का कि deserts में normally ना तो पानी होता है ना vegetation, means no plants, no greenery is there. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. तो desert में अगर फ्रेश वाटर, एक पैच ऑफ फ्रेश वाटर मिलता है, एक छोटा सा पानी का पैच मिलता है, एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ द वास्ट डेजर्ट इज अ ब्यूटीफुल साइट. पूरी डेजर्ट में एक छोटा सा पानी का पैच और उसके आसपास ग्रीन ट्रीज makes a wonderful sight because all around in the desert there is sand. So in sand, if you see a patch of water and the green trees around, it really attracts the viewers. So a desert may be too hot और टू कोल्ड. डेजर्ट जो है यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं या बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं. चलिए, नाउ लेट अस रीड द चैप्टर. Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. So हम लोग या वो लोग जो प्लेन्स में रहते हैं, उन regions में रहते हैं where the land is covered with forest and it is surrounded by hills, it may be difficult for us to imagine what a desert really looks like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand. हम लोग क्या believe करते हैं? When I say the word desert, आपके mind में एक image आ जाती है कि दूर दूर तक सिर्फ sand है, right? And there are camels walking, because this is what we have seen on screen or on TVs. So we people have the image that desert is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. जहाँ पे ना तो बारिश होती है और ना ही vegetation grow करती है, पेड़ पौधे फूल पत्ते grow करते हैं. It is dry, hot, waterless and without shelter. ड्राई होता है, ये सारे जो हैं उन्होंने डेजर्ट के बारे में बोली है एडजेक्टिव्स. ड्राई होते हैं, हॉट होते हैं, वाटरलेस होते हैं और वहां पे इजीली शेल्टर अवेलेबल नहीं होता. बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट. पर ये जो हमारा इमेजिनेशन है या कंसेप्शन है, हमारा जो एक प्रीव्यू है इस चीज के बारे में कि डेजर्ट्स ऐसे होते हैं, ये करेक्ट नहीं है. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. उन लोगों के लिए जिन्होंने डेजर्ट्स को स्टडी किया है, उनके लिए डेजर्ट जो है एक ब्यूटीफुल प्लेस है. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. उनके लिए डेजर्ट क्या है? एक घर है. किसके लिए? वेराइटी ऑफ पीपल, जहाँ पे बहुत तरह के लोग रहते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, एंड दे हैव लर्न्ड टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. और उन सब ने, किन्होंने? द पीपल, द एनिमल्स एंड द प्लांट्स, दे अडैप्ट देमसेल्व्स टू द कंडीशंस ऑफ द डेजर्ट. उन्होंने अपने आप को अडैप्ट कर लिया है डेजर्ट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग, हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. So the writer says that it is right कि जब हम desert को देखते हैं तो जो ground है वो बहुत ज़्यादा covered नहीं होती grass के साथ, plants के साथ और trees के साथ, as it is in other climates. जैसा कि हम दूसरे climates में देखते हैं that the ground is covered with trees, plants. And in desert, it is not that it is covered with trees and plants. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. पर जब हम, but whenever it rains, but जब कभी भी बारिश होती है, which is rare,
क्या रेयर है? डेजर्ट्स में बारिश का होना, राइट? डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, उस बारिश के मौसम में, उस बारिश में जो डेजर्ट में फूल खिलते हैं, एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और जो साइट है वो उतनी ही रिवॉर्डिंग हो सकती है, वो जो उस सीन को देखना, बारिश में फूल खिल रहे हैं, बहुत ही रिवॉर्डिंग होता है जितना कि किसी अदर ट्रॉपिकल गार्डन में होता है. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. Desert जो है वो हमेशा ही ये नहीं होता कि एक बहुत ही फ्लैट अनचेंजिंग सा सरफेस है जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है, ड्राई सैंड है. It may have mountains and hills. Deserts में भी mountains and hills होते हैं. It may have an oasis, big or small. और इसमें भी oasis होता है. That oasis may be big or small. Then it is, an oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. अब अगर हम oasis की बात करें तो what is an oasis? एक ग्रीन लैंड है इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट. डेजर्ट के सेंटर में एक ग्रीन पैच है जहां पे स्प्रिंग से और कुएं से उसके आसपास जो प्लांट्स एंड ट्रीज हैं उनको ग्रो करने के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट मिलता है, चांस मिलता है उन ट्रीज एंड प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख. अब उसके एनवायरनमेंट की बात की है, डेजर्ट जो है उसका टेम्परेचर थार डेजर्ट की तरह हॉटेस्ट भी हो सकता है और लद्दाख की तरह कोल्ड भी हो सकता है. मतलब डेजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी भी हो सकती है और बहुत ज्यादा ठंड भी हो सकती है. बट जनरली स्पीकिंग, इफ अ प्लेस हैज little or no water and vegetation, people usually call it a desert. बट अगर हम जनरली बात करें तो अगर किसी जगह पे या तो पानी और वेजिटेशन कम है या बिल्कुल नहीं है तो लोग उसे डेजर्ट कह देते हैं. Some deserts are almost totally without water. कुछ डेजर्ट जो हैं वो बिल्कुल ही पानी के बिना होते हैं. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. So कुछ डेजर्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर होते हैं, उनमें पानी बिल्कुल नहीं होता. इन सच प्लेसेस, और ऐसी जगहों पर, सच प्लेसेस किसको रेफर कर रहा है? उन डेजर्ट्स को जहां पे विच आर टोटली विदाउट वाटर. सो सच प्लेसेस, strong winds blow, raising the heaps of sand and depositing them as mounds. ऐसी जगह पे जो रेत के heaps of sand होते हैं, ढेर होते हैं, रेत के ढेर उड़ते हैं और किसी और जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं और वो क्या बन जाता है? माउंट्स. जब रेत हवा के साथ उड़ के किसी दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाती है, हीप बन जाता है, उसको हम कहते हैं माउंट. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. और इन माउंट्स को हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स. अब इनको सैंड ड्यून्स कहते हैं तो ये शिफ्ट होते रहते हैं और मूव होते रहते हैं एंडलेसली. क्यों? क्योंकि जब भी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करेगी वो रेत के जो हीप है वो वहां से उड़ना शुरू हो जाएगा, किसी दूसरी जगह पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो वहां पे सैंड ड्यून बन जाएगा. Few plants can survive on such dry shifting sand. और बहुत कम, जब मैं few plants कह रही हूँ तो almost negligible, बहुत कम plants ऐसे हैं जो survive कर सकते हैं उन sand dunes पे. And now next we have comprehension check, which we'll discuss when we are through with the chapter. Reaching to the next paragraph. Okay, so we are going to read next paragraph where we will discuss about desert plants, desert animals,
How do they adapt themselves according to the environment? All living things need water in order to survive. This is understood that whether it be plants, animals, or human beings, everyone needs water to survive. The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. पर जो डेजर्ट में प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उन्होंने अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप कर ली है दैट दे कैन सर्वाइव इवन व्हेन देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर. But if we talk about other plants which grow in plain regions, they require more water for their survival. But the plants and trees in deserts, they adapt themselves to the conditions of the desert and they can survive even with less amount of water. The camel, popularly known as the ship of the desert, can drink a lot of water at one time. This you have read maybe in your childhood also, that camel is called the ship of the desert, right? So that ship of the desert can drink a lot of water at one time. एक ही टाइम पे बहुत सारा पानी पी सकते हैं. Camels can do without water for days together. Camel जो है वो कई दिन तक पानी के बिना रह सकते हैं. The reason is they sweat very little. अब इसका रीजन क्या है कि कैमल्स को स्वेट बहुत कम आता है. If I talk about you people, during the summer season, you people sweat a lot and your consumption of water is more, right? And in winter season, when you sweat less, then consumption of water is also less. So we drink water to maintain the temperature of our body. That is why we consume more water in summer season and less water in winter season. And if I talk about camel, so camels जो हैं, they sweat very little. We sweat because we must keep our body temperature constant, as I have already told you. We sweat when it gets hot, and this cools the body. जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग क्यों होती है? ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे और हमारी बॉडी कूल रहे. Camels can stand high body temperature, but जो camels हैं, they can bear a high body temperature also. They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long period of time. तो जो camels हैं, वो काफी high body temperature को bear कर सकते हैं, इसलिए उनको they don't need to sweat, उनको sweat की जरूरत ही नहीं है, and can therefore और इसलिए retain कर सकते हैं पानी को काफी लंबे समय तक. जितना पानी वो पीते हैं उस पानी को काफी लंबे समय तक retain कर सकते हैं, क्योंकि they can bear high body temperature and they don't sweat. हाँ जी. Next, the smaller desert animals do not drink water. जो smaller desert animals हैं वो पानी नहीं पीते. They burrow underground during the hot days and come out at night to eat. अब जो small desert animals हैं वो क्या करते हैं? जब दिन में गर्मी होती है, they burrow underground, sand में नीचे वो sand के नीचे रहते हैं, and at night they come out, sand से बाहर आ जाते हैं. अब sand के नीचे तो टेम्परेचर ठंडा होगा, जब सैंड के बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं वो, देन टेम्परेचर इज क्वाइट ओके. तो ठंड में फिर प्यास नहीं लगती ज्यादा, और रात को जब सैंड कोल्ड हो जाती है वो बाहर आ जाते हैं. सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट. अब कुछ एनिमल्स जो हैं वो सरवाइव करने के लिए दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और उनकी जो नीड ऑफ वाटर है वो कहाँ से पूरी होती है? अदर एनिमल्स के मीट में जो मॉइस्चर है उससे उनकी पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. और जो बाकी के हैं वो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं,
और जितना पानी उन्हें रिक्वायर्ड है उतना वो प्लांट जूसेस से गेन कर लेते हैं. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. अब जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, अडेप्ट मीन्स दे चेंज, अपने आप को उस माहौल में ढाल लेना, अडेप्ट कर लेना. और जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो अपने आप को कर लेते हैं उस माहौल में, अपने आप को चेंज कर लेते हैं. कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स. कैक्टस प्लांट जो है कहाँ पे पानी स्टोर करता है? वेरी गुड, अपने थिक स्टेम्स में. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. अब जो कैक्टस प्लांट है उसके जो रूट्स हैं वो सरफेस के, ग्राउंड के काफी करीब होते हैं और इसलिए अगर हल्की सी भी बारिश होती है तो वो बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दे फुलफिल देयर नीड ऑफ वाटर. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variation of temperature. जो क्या कहते हैं मेजर फीचर है सारे डेजर्ट्स का, वो क्या है? ड्राइनेस. ऑल द डेजर्ट्स आर ड्राई. एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, और उनके टेम्परेचर में वेरिएशन होते हैं. मतलब दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात में ठंडा. इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, और अगर हम ह्यूमिड क्लाइमेट की बात करें, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. और अगर हम ह्यूमिड क्लाइमेट्स की बात करें तो जो मॉइस्चर ऑफ द एयर है, हवा में जो मॉइस्चर होता है वो एक कवरिंग की तरह काम करता है. ब्लैंकेट हियर इज कवरिंग. किस चीज की कवरिंग? अर्थ की कवरिंग. वो अर्थ को कवर कर लेता है और अर्थ को किससे प्रोटेक्ट करता है? From the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. और जो desert lands हैं उनमें ये blanket जिसको हम कह रहे हैं layer of moisture, covering of moisture, वो absent होती है. There is no covering. So the desert lands जो हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, right? They heat up quickly and they also cool down rapidly. जल्दी से गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं. Deserts are an important part of nature's green plan. Desert जो हैं वो बहुत ही ज्यादा important part है nature का. They are there like the dense forests and the deep oceans. और वो अर्थ के ऊपर उतने ही इम्पोर्टेंस रखते हैं जितने की डेंस फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जितने डीप ओशंस इम्पोर्टेंट हैं या रिक्वायर्ड हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए डेजर्ट्स हैं. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth. अब क्योंकि जो डेजर्ट्स हैं वो काफी ड्राई होते हैं, काफी हॉट होते हैं, तो इसलिए किसी को भी उन डेजर्ट्स को दे शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स, कि ये यूजफुल पार्ट नहीं है अर्थ का. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल.